Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes. So today I am going to discuss all about all those selected questions of John Donne which have been appeared in our last previous year's papers. Alright then, so John Donne की poems जो भी अब तक मैंने cover की है into my last videos आप उनको जाके देख सकते हैं पहले. तो जो भी पोइट्रीज़ हैं बेसिक अपनी जॉन डन की इन आर सिलेबस दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ कैनोनाइजेशन डेथ बी नॉट प्राउड द गुड मोरो on his mistress going to bed and the relic. So all these points I have covered in my earlier videos. Before going to move with this particular video, ये मेरा आप सब लोगों को सजेशन है कि आप जो भी मेरे वीडियोस हैं अर्ली वीडियोस हैं जो भी प्रेस्क्राइब्ड पॉइंट्स हैं इनटू योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी आईएएस मेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, तो मैं चाहूँगी कि पेपर वन का ये जो सेकंड टॉपिक है जॉन डन्स पॉइंट्स आप इसको पहले डिटेल आउट करें, मैं मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखें और उनके प्रॉपर नोट्स तैयार करें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए जो भी आज अपन वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन्हीं से सारे रेलेवेंट हैं. और अगर आपने अब तक वीडियो देख ली हैं, जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो अगर आपने देख लिए हैं अब तक, तो आप सारे क्वेश्चंस को एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे ईजिली एंड यू विल बी एबल टू आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस perfectly. All right then, so without taking much of your time, here I'm moving ahead with the particular questions, with the selected questions from the previous year's papers of the questions which are relevant to John Donne and his poems. All right then, so here I am leading. So I'll be discussing the questions from 2015 until 2019. 2015 से 2019 तक जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं और जिनमें जॉन डन से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे ऑप्ट किए हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. ऑल राइट देन, so in 2015 the first question we have of John Donne is examples of any two conceits. Examples of any two conceits from Donne's poems. Write short note in 150 words. So there is this first question जिसमें आपको 150 words में आंसर देना होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉन डन्स पोइम कि जॉन डन की पोइम में जो भी दो कॉन्सीट्स बेसिक कॉन्सीट जो आपको पता है आपको वो यहाँ पे इलाबोरेट करनी है विद इन 150 वर्ड्स. ऑल राइट देन, तो अगर आपने अब तक मेरे जो भी वीडियोस देखे हैं दैन यू विल ईजिली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, क्योंकि जॉन डन के जितनी भी पॉइंट्स है वेदर दैट इज़ द कैनोनाइजेशन, डेथ बी नॉट प्राउड, द गुड मोरो, ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड एंड द रेलिक, इन सब में आपको कहीं ना कोई कॉन्सीट मिलेगी. और अगर आपको इन सारी पॉइंट्स में से दो कॉन्सीट भी याद है एग्जैक्टली तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो. ऑल राइट, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ. इफ़ यू हैव स्टडीड, if you have watched out the videos which is all relevant the good morrow, from the good morrow I still remember the conceit which was used by John Donne into his poetry, the good morrow. So in the particular poem the good morrow, the fourth line contains, the poem's fourth line contains a legendary conceit. If you have gone through with my videos then you must learn about the legendary conceit which was used by John Donne into his poetry, The Good Morrow. So that legend that tells of the seven young men of Ephesus, the seven sleepers. So they took refuge in a cave during the persecution and they were entombed there. And later on, after 2 years, they found alive. All those seven sleepers found alive. The story of this particular seven sleepers legends I have discussed in my video while I was discussing all about the poem The Good Morrow. I have detailed everything about the text of The Good Morrow and about the analysis of this particular poem. Alright then, so there John Donne compares himself and his beloved with the seven sleepers. So the comparison between two things, the comparison between two different things in a very hyperbolic manner is what we call the conceit. So in the poem The Good Morrow, the first conceit we have got where
John Donne compares himself and his beloved with the seven sleepers, with the legend of seven sleepers. All right, so this is the first conceit we have. आप जैसे जैसे मेरे वीडियोस को देखेंगे ना, आप एग्जैक्टली पॉइंट आउट करते जाएंगे, आपका ये आंसर आप इजीली कर पाओगे. कैनोनाइजेशन जो मैंने पॉइंट पढ़ाई थी, कैनोनाइजेशन में जो जॉन डन ने जो कॉन्सीट यूज़ की है, दो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सीट्स हैं, पर मैं एक पर्टिकुलर कॉन्सीट बता रही हूँ. While John Donne called the love as asceticism. So basically this particular word canonization plays the dual role into this particular poem, the canonization. And on the one side he serves the role of canonization of the lover's pair, while the poet argues that his love will canonize him into a form of sainthood. ऑल राइट, सो जब भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखेंगे, उनको अच्छे से डिटेल आउट करेंगे, एंड दैट टाइम यू वुड गेट टू नो कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ईजीली दे पा रहे हो, क्योंकि आप दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जान पाओगे, बट ओनली वाइल यू वुड गो थ्रू with all the videos of mine which I have uploaded all about John Donne. All right then. So next question, the another question in the same year 2015. In what ways did John Donne break away from the contemporary poetic tradition which made him so original and different? Write a recent answer with illustration from the text. तो अप्रॉक्सीमेट इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि जॉन डन के जितने भी कंटेम्प्रेरीज थे, व्हाट काइंड ऑफ पोइम्स वर रिटन बाय दैम, और जो जॉन डन थे उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एक्चुअली सेपरेट किया इन पोइटिक जॉनरे, कि वो उनका जो राइटिंग स्टाइल था दैट वाज ऑल डिफरेंट फ्रॉम द पीपल और फ्रॉम द पोइट्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी एज. तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी डिवाइसेस है विच वर यूज्ड बाय जॉन डन जो कि उन्हें और पॉइंट्स से अलग बनाती हैं. तो हमें यहाँ पे बिल्कुल रीज़न आंसर देना है. तो बेसिक अगर चीज़ें देखें, जैसे जॉन डन ने बहुत सारी चीज़ें नई यूज़ की हैं या फिर अलग तरीके से यूज़ की हैं इनटू हिज poems, जैसे मेटाफिजिकल कंसीट्स वाज यूज बाय हिम, द इमेजरीज, जिस तरीके से वो इमेजरीज को यूज़ करते हैं इनटू हिज पोइट्री. तो आप जब ये पाँच और 6 पॉइंट्स जो कि अपने सिलेबस में दी हुई है उनको अच्छे से स्टडी आउट करोगे, दैन यू वुड कम टू नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हैं जॉन डन की पोइट्री में फ्रॉम द रेस्ट पोइट्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी एज. ऑल राइट, तो जैसे अपनी पोइट्री है द गुड मॉरो, कैनोनाइजेशन टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बैड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फिज़िकल और स्पिरिचुअल, फिज़िकल लव एंड रिलीजियस लव, इन दोनों को जक्सटापोज करते हैं, साथ में कंबाइन लेके चलते हैं, कॉन्ट्रास्ट वे में भी प्रेजेंट करते हैं, प्लस एक दूसरे का सिनोनिम भी प्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, बट ऑन वन कंडीशन, मैंने पहले भी मेंशन किया है, जस्ट गो थ्रू विद ऑल द वीडियोस विच आर रेलेवेंट टू जॉन डन्स पोइट्रीज एंड द पोइम्स पर्टिकुलरली विच आर डिस्क्राइब्ड इनटू आवर सिलेबस. ऑल राइट, मैंने एक जॉन डन के इंट्रोडक्शन से रेलेवेंट भी एक वीडियो अपलोड किया था, आप वो भी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज फ्रॉम देयर यू वुड कम टू नो इन वॉट वे जॉन डन वॉज एक्चुअली डिफरेंट इन हिज राइटिंग from the people, from the poets of his own age. All right then. So there are various devices which were being used by John Donne into his poetry which made him different from the rest poets of his era. All right then. So in 2016, the another year of your examination. So first question in 2016 was self-conscious structuring of the images in metaphysical poetry. Self-conscious structuring of the images in metaphysical poetry. आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है इजीली. तो जब आप पोइट्रीज पढ़ते हैं ना ऑफ जॉन डन, कैनोनाइजेशन हो, गुड मॉरो हो, या फिर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बैड, द रेलिक, तो इन सारी पोइम्स में आपको एक सेल्फ स्ट्रक्चरिंग इमेज दिखाई देगी. हर एक मेटाफिजिकल पोइट्री में ये एक स्पेशलिटी होती है, एक सैलेंट फीचर होता है
जहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस स्ट्रक्चर्ड इमेज रिप्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो स्पीकर होता है, पॉइंट होता है, ऑल द टाइम ही और शी टॉक्स अबाउट हर सेल्फ और हिम हिज ओन सेल्फ। हर बार जो स्पीकर है वो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, उससे जिन चीज़ों से वो जिन चीज़ों से रिलेट होता है वो उनके बारे में बात करता है, या जिन चीज़ों से वो अफेक्ट होता है वो उन्हीं के बारे में बात करता है। कैनोनाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो, गुड मॉरो का एग्जाम्पल ले लो, द रैलक का एग्जाम्पल ले लो। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखा है तो हर एक पोइट्री में आपको ये चीज़ दिखेगी, जहाँ पे जो स्पीकर है अपने आप को प्रेजेंट करने की एक सेल्फ स्ट्रक्चरिंग इमेज आपको दिखेगी। प्रॉपर वो स्पीकर अपने खुद को प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। ही टॉक्स ऑल अबाउट हिज ओन सेल्फ और हिज ओन बिलोंगिंग्स ओवर देयर। तो आप इजीली इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हो, बट ऑन वन कंडीशन, वाइल यू वुड गो थ्रू विद ऑल द पॉइंट्स टेक्स्ट। ऑलराइट, मैंने अपने जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के बेसिस पे ही एक पर्टिकुलर हर पोइट्री को समझाने की कोशिश करी है। सो हर एक पोइट्री में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी विद एग्जाम्पल। अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो विद एग्जाम्पल यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। All right. Another question in 2016 is John Donne uses desperate image in his poems about physical and spiritual love. Discuss with the specific reference to canonization and to his mistress going to bed. While you would come through with both of these poems to his canonization and to his mistress going to bed, इन दोनों में एग्जैक्टली जो पोएट है जॉन डन है, उन्होंने फिजिकल स्पिरिचुअल लव कि एक डेस्परेट इमेज को क्रिएट किया है, जहाँ पे फिज़िकल लव और स्पिरिचुअल लव, प्लेटोनिक लव को रिप्रेजेंट किया है बेसिक, अगर हम बेसिक वर्ड्स में बात करें तो। ऑलराइट, जहाँ पे दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द लवर्स टू मेंटेन देयर लव रिलेशनशिप जब तक कि फिज़िकली वो लोग अलाइव हैं। तो एक तरीके से रिक्वेजिशन कह सकते हैं, या एक तरीके से एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है जहाँ पे आफ्टर लिविंग द बॉडी उनकी सोल्स मिलेगी। तो वो फिज़िकल लव प्लस स्पिरिचुअल लव की एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं, प्लेटोनिक लव की इमेज क्रिएट करते हैं। ऑल राइट, सो जॉन डन यूजेस डेस्परेट इमेज इन हिज पोएम्स अबाउट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव। तो कैनोनाइजेशन एंड टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, इनके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, दैन यू वुड आंसर दिस क्वेश्चन ईजीली। ऑलराइट देन, in 2017 we have the question, the poetry of John Donne juxtaposes physical love with the sacredness of the religion through a series of occult resemblances. Examine with reference to the poem prescribed into your own syllabus. So John Donne ने, the poetry of John Donne juxtaposes physical love with the sacredness of religion through a series of occult resemblance. बहुत सारी ऐसी जगह पे जॉन डन ने जो भी इमेजरीज की क्रिएट की है ऑफ फिजिकल लव एंड द सैक्रेडनेस ऑफ द रिलीजन, वो बहुत सारी इमेजरीज के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। While you would go through with all the videos properly and with the text lines and with the explanation, with the analysis of the poem, then you would come to answer all these of this particular question too. आप इसका भी आंसर पर्टिकुलर दे सकते हैं, जहाँ पे हर पोइम में जो पॉइम्स अपने सिलेबस में दे रखी है, वो सारी पॉइम्स को अगर आप स्टडी आउट करोगे तो आपको एग्जैक्टली जो जक्सटापोजिशन ऑफ फिजिकल लव एंड विद दिस सैक्रेडनेस ऑफ रिलीजन, आप उसको ईजीली हैंडल आउट कर सकते हो, आप उसको ईजीली मेंटेन कर सकते हो टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, अनदर क्वेश्चन इन 2018 वी हैव discuss the salient features of metaphysical conceits used by Donne and elucidate your answer citing examples from the poems prescribed the studies. तो बेसिकली अगर आपको एग्जैक्टली जॉन डन या किसी भी पॉइंट से या किसी भी सिचुएशन से रेलेवेंट अगर कोई भी आंसर देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर वीडियोज़
I have been providing, though there are thousands of videos relevant to these topics, but whatever I've been providing the videos which are relevant to your own specific syllabus के अकॉर्डिंग इन योर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं स्टडी आउट करा रही हूँ. आप जब मेरी वीडियोस को देखेंगे दैन यू वुड कम टू नो द टेक्स्ट वाज देयर, द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाज देयर, द पर्टिकुलर एनालिसिसमेंट इज देयर. तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते हो. फिर ये जो सैलेंट फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट के बारे में बताया गया है, तो बेसिकली कंसीट का मतलब शायद मैंने अभी भी एक थोड़ा बहुत डिफ़ाइन किया था. बाकी जो पोइट्रीज़ का जो वीडियोस है वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली इस चीज़ को एलैबोरेट किया दैट व्हाट डज इट मीन बाय कंसीट. बेसिकली जॉन डन की बहुत सारी पोइट्रीज़ हैं जिसमें मेटाफिजिकल कंसीट्स कंटेन्ड हैं and intellectual reasoning to build a deeper understanding of the speaker emotional state. And the conceits are being used by John Donne to make the reader understand the intellectual or the emotional state of the speaker. A conceit can be defined as an extended unconventional metaphor between objects that appear to be unrelated. तो दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है जॉन डन की हर एक मेटाफिजिकल पोइट्री में. बेसिकली मेटाफिजिकल पोइट्रीज़ में जो कॉन्सीट्स होते हैं वो दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होता है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं. ऑल राइट. तो जैसे कि अपनी पोइट्री है द गुड मॉरो विच इज़ ऑल्सो गिवन इन टू आवर सिलेबस टू. सो इन द पोइम गुड मॉरो देर आर लाइन्स. यहाँ पे मैं लाइन रिसाइट कर रही हूँ जो कि मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है, जहाँ पे पॉइंट कहता है, स्पीकर कहता है, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट. तो बेसिकली इन लाइंस में जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो अपने बिलवड को एक पूरा वर्ल्ड मानता है. ऑल राइट. एंड जो बिलवड को वो कहता है कि दैट आई एम द वर्ल्ड फॉर यू एंड यू आर द वर्ल्ड फॉर मी. तो यहाँ पे वो एक दूसरे का कंपैरिजन, लवर्स का कंपैरिजन एक पूरे वर्ल्ड से कर रहे हैं, एक हेमिस्फेयर से कर रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. हम कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, चारों हेमिस्फेयर्स वर देयर. ठीक है. तो वो एक दूसरे को हेमिस्फेयर्स बोलते हैं, एक दूसरे का किनारा बोलते हैं एक दूसरे को. एंड हियर ही सेज द लवर इज अ होल वर्ल्ड टू हिज बिलवड एंड शी इज अ होल वर्ल्ड टू हिम. नॉट ओनली दैट दे आर टू बेटर हेमिस्फेयर्स हु कॉन्स्टिट्यूट द होल वर्ल्ड. So hope you would get to know what kind of conceits and what kind of metaphysical conceits are used by him, in what way, and the features of all those conceits you would come to know only after knowing the particular text and the analysis of the poems. In the poem Canonization, another poem of John Donne, which is also into our syllabus, there he used another conceit. The conceit are, alas, alas, who's injured by my love? What merchant ships have my sighs drawn? So here we can easily find the use of the conceit where the organic imagery is a strong point of this poem. And in this particular in these particular lines where he says that who is injured by the love of her, the merchant ships have my sighs drawn. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि किस मर्चेंट की जो शिप है वो ड्रॉन हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ आर साइज which we have been taken due to by making love with each other. All right. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की कॉन्सीट यूज़ की गई है और क्या फीचर्स हो सकते हैं उनके. फिर भी हम बात कर रहे हैं ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. तो जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट मेटाफिजिकल पोइट्री कंटेन लार्ज डोजेज ऑफ विट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. In fact, although the poets were examining serious questions about the existence of God or whether a human could possibly perceive the world, the poets were sure to ponder those questions with humor. Here
you must notice whatever I am speaking, just note down all those words. Metaphysical poetry also sought to shock the reader and wake him or her up from his or her normal existence in order to question the unquestionable. The poetry often mixed ordinary speech with paradoxes and puns. There are the uses of paradoxes and puns into the poems too. The results were strange, comparing unlikely things. They compare the things which are just opposite with each other. They do not like each other, such as lovers to a compass or the soul to a drop of dew. These weird comparisons were called what we call the conceit. Metaphysical poetry also explored a few common themes. They all had a religious sentiment. They all have religious sentiment too. In addition, many of the poems explored the themes of carpe diem. Carpe diem means the seize of the day. This particular term, which we call the English literary term carpe diem theory, is there. So I would definitely let you know whenever I'll be uploading the videos with this particular theme, that is carpe diem, an amazing theory, and investigated the humanity of life into two. One great way to analyze metaphysical poetry is to consider how the poems are about both thought and feelings. Think about it. How could you possibly write a poem about the existence of God if you didn't have some emotional reaction to such an enormous life alerting question? So, there are the questions, life alerting questions too. The question upon the existence of God. The questions are the comparison between two different things. So there are many lot more metaphysical conceits which were used by John Donne, and their features you would come to know only after knowing the particular text of the each poem. In 2019, we have the question number 1, the unique features of metaphysical poetry. The unique features of metaphysical poetry मैंने अभी just question एक यहाँ पे 2018 में जो अपना आया है. The salient features of metaphysical conceits used by John Donne, elucidate your answer citing example from the poem prescribed for studies. तो इसका कुछ आंसर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री के एग्जैक्टली फीचर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, कॉन्सीट यूज़ की जाती है, इमेजरीज जो जो यूज़ की जाती है, किस तरीके के कंपैरिजन्स होते हैं, पैराडॉक्सेस यूज़ होते हैं, पांस यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है. जब भी आप वीडियोस देखेंगे सारे जो भी मैंने अपलोड किए हैं, दैन यू वुड कम टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इजीली. In celebrating love as the supreme, the only thing in the world, Donne went to a new twisted kind of hyperbole. Discuss. So, जब भी आप जॉन डन की पोइट्रीज को पढ़ेंगे ना, आपको ये तो डेफिनाइट हो जाएगा, आप क्लियर हो जाओगे इस चीज़ को कि उसने हर जगह पे हर पोइट्री में लव को एज अ सुप्रीम थिंग माना है. और यहीं से उसकी जो पोइट्री है वो एक कह सकते हैं एक फॉर्मेशन में आती है, हाइपरबोलिक फॉर्मेशन में आती है. लव को सुप्रीम मानना, ठीक है, उसे नए तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसका कंपैरिजन ऐसी ऐसी चीज़ों से करना जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोच भी नहीं सकता है. तो वो सारी चीज़ें, सारे फीचर्स आपको उसकी पोइट्रीज, जॉन डन की पोइट्री में मिलेंगे. ऑल राइट दैन. So these are the questions which have appeared from 2015 until 2019. जो भी क्वेश्चन जॉन डन से और उसकी पॉइंट से रेलेवेंट है मैंने सारे यहाँ पे बता दिए आपको. आंसर आप तभी दे पाओगे, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब आप एक एक वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे हर चीज़ को, बाद में ईजीली यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस फ्लॉलेसली, ट्रस्ट मी. ऑलराइट देन. So thank you so very much for watching this video, for coming through with all the questions which have been appeared last years. All right then. So thank you so much for attending the lecture at Gargi classes. We are here for you people. All right then. So don't forget to subscribe the channel. Don't forget to press the bell icon to get the notification of our each upcoming video. And if you have any kind of problem, query, doubt in your mind, do comment us below.
Thank you so much for watching this video.